Hello dear students, welcome back to another lecture of complex numbers. We are going to start this lecture with a follow-up question. This is basically DIY problem of last lecture. Okay, what we have to do, we are given with a complex number z equal to 4 plus iota root 7 and z cube plus minus 4 z square minus 9z plus 91. You have to find this value. Okay, so one method, which is not very smart method, will be, we are given with z, we can find z square. Eventually by multiplying z we can get z cube, then by putting the z cube here, z square here and z here, we can solve it. Okay, but this method will be quite calculative method, and whenever there is more calculation, we are very prone to calculation mistake. Okay, so there must be another method. What is that? Let us see. Z is equal to given as 4 plus iota root 7. Okay, I am writing this as z minus 4 is equal to iota times root 7, and then by squaring both sides we will get z minus 4 whole square is equal to minus 7. Iota square will be minus 1, root 7 square will give us 7. Okay, so ultimately z square minus 8z plus 16 minus 7 is equal to plus 7 is equal to 0, or I can write is equal to minus 7. Okay, so z square minus 8 times z plus 23 is equal to 0. Okay, तो z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 इसका वैल्यू 0 मिल गया. अब यहाँ से हम लोग ये जो भी z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91 का वैल्यू पूछा गया, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ what we have studied in our lower classes, in our 10th and 9th class, that is remainder and factor theorem. If I divide any cubic polynomial with a quadratic polynomial, the remainder will be, the degree of remainder will be always less than 2. That is, the remainder can be constant, it can be linear polynomial. Okay, so let's divide z cube minus 4z square minus 9z plus 91 with z square minus 8z plus 23. Z times z cube minus 8z square plus 23z, subtract, cancelled, this become plus, this become minus, so 4z square minus 32z and plus 91. Okay, again plus 4 will give us plus 4z square minus 32z and plus 23 into 4 will be 92. Okay, again subtract, this become plus, this become minus, cancelled, 91 minus 92 will give us minus 1, so the remainder is minus 1. So I can write z cube minus 4z square minus 9z plus 91 as, this is dividend, this will be equal to divisor into quotient and plus remainder. Okay, okay fine. So अभी हमने ये कैलकुलेट किया that z square minus 8z plus 23 is what? 0. 0 multiplied by anything will give us 0 only, so final answer is what? Minus 1. Okay, this is the answer. So this is a not very calculative method. Okay, I hope you understood it well. Let's move on to next question, that is again a square root problem. We have to find the square root of a complex number, that is 24 minus 7 iota. I have already told you formula for calculating the square root of complex number, but this question I am not doing it by formula. Okay, so the process of doing this question is basically a proof of the formula. I have told you that I will
I will make you realize the proof of that formula. Okay, so you will need to say it very carefully. Let's see, we are not going to apply any formula. Okay, we are just assuming that square root of this complex number is a complex number which is x plus iota y, and obviously x and y are what? Real numbers. Square root of any complex number will be a complex number only. So I am assuming that the square root is x plus iota y. Okay, so I have two variables, one is x, other is y, but in the left hand side, in the right hand side, I have two complex number which are equal to one another. I can compare their real as imaginary part and make two equations here. Okay, so before that we are going to square both side. So 24 minus 7 iota will give us x square, iota square y square will be minus y square, and plus 2 iota xy. Now if we compare our real and imaginary part, we will have x square plus y square is equal to 24, the real part. This is equation number 1, and 2xy is equal to minus 7, that imaginary part. Okay, this is equation number 2. Okay, 2x square equal to minus 7 means x into y is equal to minus 7 by 2. The product of two numbers is negative, implies that both numbers cannot be of same sign. Both numbers cannot be positive, both numbers cannot be negative also. Okay, so one is positive and other is negative. This is for sure. Okay, अभी मेरे को ये नहीं पता है कि x पॉजिटिव होगा या y पॉजिटिव होगा, बट ये तो श्योर है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना ही होना है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व. वी आर having two equation, two unknown. Y is equal to minus 7 upon 2x. Put this y in the equation 1. Okay, so x square minus 7 upon 2x whole square will be 49 upon 4x square is equal to 24. Okay, आप ये खुद देखना कि ये मेथड कितना लेंथी है. ओके, इसीलिए हमने ये इसी मेथड को यूज करके एक फार्मूला बना लिया था पहले ही. So this will be 4 times x square whole square minus 49 equal to 24 into 4x square. Okay, which will be let's say x square is equal to t. Okay, again assume that x square is equal to t, so we will get 40 square minus 24 into 4 will be 96t minus 49 is equal to 0. Okay, this is a quadratic equation, quadratic in t, we can easily solve. So t will be minus b plus minus square root of our discriminant, that is 100, divided by 4 into 2, that is 8. Okay, so if you consider positive sign, it will be 196 upon 8. 196 upon 8 will be 24.5. T will be 24.5. Okay, and if you consider negative sign, 96 minus 100 will be minus 4, so t will be negative. Okay, we can easily reject this value of t because t is some perfect square of a real number, it cannot be negative. Okay, so t is basically x square, which is 24.5, that is what, 49 upon 2. Okay, so this is x square. So what is x? X is 7 upon root 2 or minus 7 upon root 2. Okay, I hope everything is good. Okay, yes. So y, what will be y? Y is nothing but minus 7 by 2x. So if we are considering
x is equal to positive, y will be negative. Okay, so y will be minus 7 upon 2, x is 7 upon root 2. Okay, 7 get cancelled, and it will be minus 1 by root 2. And if we are considering x equal to minus 7 by root 2, then y will be plus 1 by root 2. Okay, so again we have initially considered the square root of complex number to be x plus iota y. From here we can write the square root. Okay, you can easily verify this by formula. Do it by yourself. Okay, so I am writing final answer. Final answer is x plus iota y, that is 7 by root 2 minus iota 1 by root 2, or if we consider x negative and y positive, so it will be minus 7 by root 2 plus iota upon root 2. This is our final answer. Okay, so this is the whole process. Okay, if by chance you do not remember what the formula is, so this is the process to calculate, but you can easily observe by yourself that this is a very lengthy process. Okay, so it's always recommended to memorize that formula. Okay, good. So moving on to the next topic. Next topic is geometrical representation of complex number. Okay, so far we have studied that complex number generally are represented by this a plus iota b, where a and b are what? Real numbers, and iota is equal to root of minus 1. Okay, geometrically what we do, this a plus iota b complex number, geometrically it represents a point a comma b. Geometrically complex number a plus iota b is a point a comma b. Okay, तो ये पॉइंट है, तो ये कहाँ पे होगा? पॉइंट है ना, जैसे हमने 9th और 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा कि उधर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री। तो जो हमारा ये पूरा प्लेन है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ऐसा कुछ प्लेन होता है जिसके ऊपर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं ना। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन वगैरह ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, इसका दूसरा नाम ये भी बोला जाता है आर्जेंट प्लेन। ओके, या कई बार शॉर्ट फॉर्म में ऐसा जेड प्लेन बोल देते हैं, बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं कई बार। सो दीज आर मेनी नेम्स ऑफ सेम थिंग। ओके, अब ये कौन सा प्लेन है, क्या प्लेन है? ओके, तो इसको आप बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो वहाँ से, 10th क्लास वाली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ से, है ना, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते थे, अब उस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, ओरिजिन, और वाई एक्सिस ना बोल के हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये दो एक्सिस हैं, इस एक्सिस से ये हमारा पूरा प्लेन बनता है, जिसको हम लोग ये अलग अलग नामों से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्जेंट प्लेन, जेड प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन। ओके, तो क्या बोला गया? इतनी ही बात इसमें इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसको पॉइंट मान के, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की तरीके से ट्रीट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बस आपको ये इतनी सी बात याद रखनी है दैट any complex number z is a point in the complex plane, and that point is a plus iota b is complex number and the point is a comma b. Okay, for example, if this is a plus iota b complex number, so this is a point in complex plane, which is the real part is a. So starting from origin we have traveled a unit. If a is positive, we will move in positive direction. If a is negative, we will move in negative direction. Okay, and then imaginary part is b, so we will go b unit in the
in the direction of imaginary axis. So ultimately we reached at a point a comma b. Okay, so this point is the complex number a plus iota b, a plus iota b. ओके फाइन, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल से अगर बोला गया, चलो एग्जाम्पल तो मैं भाई नीचे बताऊंगा, है ना, पर देख लो एक बार। जैसे बोला गया 3 + 4 आइटा। ओके, सो 3 + 4 आइटा इज नथिंग बट a point 3, 4. 3, 4 will be in first quadrant. Okay, so this is the complex number z. कई बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा पॉइंट के तरीके से भी 3, 4 करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो बस इतनी बात याद रखनी है। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम एक सेपरेट टॉपिक के तरीके से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन बगैर उसके पूरा होगा नहीं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। अब ये जो आपने ये पॉइंट देखा, इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन के साथ में ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ में ज्वाइन कर दें, तो हमेशा एक डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ उस पॉइंट का, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस कहा जाता है, मॉडुलस। अब ये एक टॉपिक आ गया, मॉडुलस ऑफ z। अगर z बराबर a + आइटा b है, तो इस z का जो मॉडुलस होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसा मॉड ऑफ z से, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, पूरा ये सब कुछ स्क्वायर रूट साइन के अंदर। ठीक है, तो आप ये चेक भी कर सकते हो, इतनी तो ये ज्योमेट्री आपको आती होगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका एक साइड लेंथ a है, दूसरा साइड लेंथ b है, तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ जो है वो पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ओके, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मैंने लिखा 3 - 4 आइटा, तो ये z1 का मॉड कितना होगा, तो तुम बताओगे 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और रूट साइन के अंदर 25 विल बी 5। ओके, तो ये हो गया मॉडुलस। ठीक, अच्छा, मॉडुलस के बाद अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। ये दोनों टॉपिक अभी मैं डिटेल में इसी सेम लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ही देखो, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + आइटा b करके, है ना, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम z बार से डिनोट करते हैं। कैसे, z के ऊपर बार लगा होगा तो आप समझ जाओगे वो कॉन्जुगेट की बात हो रही है। सो z बार इज नथिंग बट a - आइटा b। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ जब मैं एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता रहा था पिछले लेक्चर में। ओके, और यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ आइटा। ओके, इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर दोगे तो वो कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इस कॉन्जुगेट का मतलब और क्या है, ज्योमेट्रिकली इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये हम आगे अभी देखेंगे। ओके, तो ये हो गया मॉडुलस, कॉन्जुगेट। और फिर तुमने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b एक पॉइंट होता है a, b। ठीक है, और समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल में मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे नोट कर रखे हैं। So these are 7 complex number. You have to find what is the point which is represented by this complex number, what is the conjugate of this complex number, what is the modulus of this these complex numbers, and simultaneously we are going to locate all these complex numbers onto the complex plane. Okay, so first one is 2, पॉइंट की बात करें तो 2, 3। 2, 3 विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 2 1 1 2 3। ओके, समवेयर हियर। सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा। ओके, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट विल बी 2 - 3 आइटा, एंड मॉडुलस, मॉडुलस विल बी 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 स्क्वायर दैट इज 9, √13। ओके, okay, next one is 7 iota. 7 iota is what point, 0, 7। पहले अपने को रियल पार्ट लिखना है, फिर इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 7। सो 0, 7 पॉइंट विल बी वेयर, 0, 7 पॉइंट, रियल पार्ट इज 0, तो रियल डायरेक्शन में 0 यूनिट जाना है, फिर ऊपर 4 5 6 7। सो दिस इज 0, 7। I can write 7 iota, I can write 0, 7 also. Okay,
What will be the conjugate? Minus 7 iota. What will be the magnitude? 0 square plus 7 square root over 7 only. Okay, fine. Next, third one is 5. So 5 is what point? 5 comma 0. 5 comma 0. 5 comma 0 will be 3, 4, 5 on the real axis. So this is the point 5 comma 0. Conjugate, you have to change the sign of iota, but if there is no iota, so no problem, this is 5 only. Conjugate of 5 is 5 and magnitude is also 5. Okay, next one is 3 minus 3 minus 4 iota. Okay, this is minus 3 minus 4 iota. So point is minus 3 comma minus 4, minus 1 minus 2 minus 3, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Okay, so this point is minus 3 minus 4 iota. Okay, conjugate is minus 3 plus 4 iota. You have to change the sign of iota only, remember, iota only. Okay, now magnitude or modulus is minus 3 square 9, minus 4 square is 16, root over 25, that is 5. Okay, next one is 0. 0 matlab origin, 0 0 point, this is 0. Okay, this one conjugate is 0, modulus is also 0. Second last, 2 iota minus 3. 2 iota minus 3, many would write 2 comma minus 3. This is wrong. You have to write real part first, imaginary part second. Okay, so real part is minus 3, imaginary part is 2. Minus 3 comma 2. So this is minus 3 comma 2. So this is 2 iota minus 3. Okay, what is conjugate? Minus 2 iota minus 3 and modulus will be 4 plus 9 root over 13. Last one, 2 minus 3 iota. Point is 2 minus 3. Point is 1 2 1 2 3. So this point is 2 comma minus 3. Okay, what is conjugate? 2 plus 3 iota. What is modulus? Root 13. Okay, so this is all about geometrical representation of complex number. Okay, तो आपने ये भी जाना कि मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करना है, कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, एक चीज़ और, complex numbers are geometrically speaking, complex numbers are points on the complex plane and points are dimensionless. Okay, so from here also we can understand that one point is we cannot term one point as bigger or lesser than some other point. Okay, so I have told you earlier that statements like this, z1 is less than z2 or z1 is greater than z2, these are completely meaningless statements. Okay, fine. So let me write couple of important points here. If I say if z is purely real number, purely real complex number, okay, z is a complex number but that is purely real. If it is purely real, its imaginary part is 0. Okay, so what will be the position of this complex number z onto the complex plane? Remember, complex plane has got two axes. The horizontal one is real, vertical one is imaginary. If a complex number is purely real, there is no imaginary part, then the position of these type of complex number will be on the real axis only. Okay, so I can write, if z is purely real complex number, then z lies on what? A real axis. Next point I can write, if z is purely imaginary complex number, then z lies on what? Imaginary axis. Okay, so these are some trivial points, not very important, not very difficult but important. Okay, so this is all about geometrical representation of complex number. So the next point, we are going to study this conjugate of a complex number in detail. Okay, so I have already told you that if z is a plus iota b, then its conjugate
conjugate z bar will be a minus iota b. Obviously a and b are real numbers here. Okay, so this is the definition of complex number. Geometrically speaking, if I try to make you understand what is the geometrical interpretation of this complex number, let's say this is a point a comma b, which is z. Okay, a comma b. Okay, now try to locate the point a comma minus b. A comma minus will be, if this is b, so same distance below the real axis. Okay, somewhere here there will be a point a comma minus b. Okay, I can say that this z bar is the mirror image, if I consider this real axis as a plane mirror, then the image of this point a comma b will be this a comma minus b. Okay, so this point z bar, this is the conjugate. So I can write geometrically, I can say z bar is the image of z in which axis? In real axis. Z bar is the image of z in the real axis. This is the geometrical interpretation of what? This conjugate of a complex number. Now if I say, okay, if I say these two triangles, okay, let's say O A B A dash, triangle OAB and triangle OA dash B, you can easily verify, you can easily see that these two triangles are congruent triangles. How? Because this length AB is equal to A dash B, similar. Okay, this is common, this is 90 degree. Okay, side angle, side congruency. So I can say this OA is equal to OA dash CPCT. Okay, congruent part of this congruent triangle. Okay, so this length OA is what? It is nothing but the modulus of complex number z, and this length OA dash is the modulus of complex number z bar, that is conjugate, and we can easily verify that these two lengths are equal. So I can write that modulus of any complex number z is equal to modulus of conjugate of that complex number. Okay, this is the proof. सो कॉन्जुगेट का ये मतलब हो गया, कॉन्जुगेट का डेफिनेशन आपको पहले से आता था, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब ये हो गया है ना। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए। प्रॉपर्टी फर्स्ट, अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लें, मतलब आयटा का साइन एक बार चेंज किया फिर दोबारा भी चेंज कर दिया, तो अल्टीमेटली वो दो बार चेंज न्यूट्रलाइज हो गया है ना। सो 2 टाइम्स कॉन्जुगेट विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे अगर हम 4 बार कॉन्जुगेट लें तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर मैं बोलूँ सेकंड प्रॉपर्टी, जो जैसे मैंने अभी ये ऊपर समझाया, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार, दैट इज जेड कॉन्जुगेट। ये भी समझ आ गया, इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? देखिए क्या है, अगर मैं जेड को ए प्लस आइटा बी या एक्स प्लस आइटा वाई कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अगर जेड को मैंने ए प्लस आइटा बी मान लिया तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आइटा बी। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, जेड और जेड बार को, तो क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में 2a प्लस माइनस का आइटा बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। एंड a इज़ नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ जेड, सो आई कैन राइट
यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जेड माइनस जेड बार विल बी 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देख लो यहीं से, ये हमने ऐड किया तो मिला, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो जेड माइनस जेड बार विल बी ए विल गेट कैंसल्ड एंड 2 आयोटा बी, सो दिस बी इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और क्या हम लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे बोलें जेड इज इक्वल टू जेड बार implies that z equal to z bar implies that z is purely real। क्या मतलब है, ये वाला जो साइन है ना, इसको हम बोलते हैं implies that, मतलब अगर इधर p लिखा है इधर q लिखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे p implies q, या फिर if p then q। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पांचवें स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है, इफ़ जेड इज इक्वल टू जेड बार, इसका मतलब इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट ओनली देन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जेड और जेड बार कब इक्वल होंगे, जब इमेज भी सेम हो जाए, है ना, इमेज देखा था ना हमने। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही इमेज के बराबर कब होगा, जब वो उस एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, आप खुद सोच लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है। और ये रिवर्स भी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो हम वहाँ से समझ जाएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर है। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किया था, 5 का कॉन्जुगेट बताओ तो 5 का कॉन्जुगेट जो है वो 5 ही होगा, ठीक। आयोटा है नहीं उसमें, तो साइन किसका चेंज करें, ठीक है ना। ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बोथ इम्प्लीकेशन, है ना, मतलब अगर इधर p लिखा है इधर q लिखा है तो p इम्प्लाइज q एज वेल एज q इम्प्लाइज p, मतलब राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी आ सकते हैं, ठीक है। सारे स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगर मैं लिखूँ ऐसे, x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सही स्टेटमेंट है। अगर x 2 है तो x स्क्वायर 4 होगा, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है, x स्क्वायर बराबर 4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। क्यों, आपको पता ही है, x स्क्वायर अगर 4 है तो x बराबर -2 भी तो हो सकता है, तो हम कैसे ये श्योर बोल दें कि x बराबर 2 ही होगा, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट मतलब बोथ साइडेड सही नहीं होते हैं ना। ये सब स्टेटमेंट्स के बारे में और भी आपको पढ़ाया जाएगा, एक अलग से चैप्टर आता है इसके लिए, उसका नाम रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे पढ़े भी हुए हैं, बट अगर आप 11th क्लास में हैं अभी, ठीक है हमारी, तो अभी आप इसको मत देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि ये कब देखना है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। फिर on the same line I can say if z is equal to minus times z bar, if z is equal to minus times z bar, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, देखो इस बात का क्या मतलब हुआ कि z बराबर माइनस टाइम z बार है, यानी कि z प्लस z बार इक्वल टू 0 है, इक्वल टू क्या है 0। अब z प्लस z बार आपको याद होगा, अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा कि ये ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z भी जो है वो 0 हो गया। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि वो इमेजिनरी है, तो बस समझ आ गया, ठीक है। तो क्या समझ आया, इफ़ z इज इक्वल टू माइनस टाइम z बार, दिस इम्प्लाइज दैट z is purely imaginary, और दोनों साइड से स्टेटमेंट सही है अगेन। तो ये सब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है।
एक आध प्रॉपर्टी मैं और भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये प्रूफ मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। आई होप आपने ये प्रूफ लिख लिया होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी समझ लेते हैं। 7th प्रॉपर्टी ये है कि अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ने के बाद में कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट आप Z1 + Z2 करना है, तो हम लोग अलग अलग कॉन्जुगेट लेके भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही काम हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग डिवीज़न में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉन्जुगेट, अगर एक लाइन में ये सारी प्रॉपर्टी को मैं समराइज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन, सबके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कॉन्जुगेट की। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स वाई का रियल वैल्यू बताना है, ठीक है ना, जिसके लिए ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया है कि दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये लोग एक दूसरे के जो है वो कॉन्जुगेट है, ठीक है भैया। अगर कॉन्जुगेट है मतलब ऐसा कुछ लिखा गया कि -3 + आयटा टाइम्स x² y, इसका जो कॉन्जुगेट है वो कौन है, तो दूसरा वाला x² + y + 4 आयटा, ठीक है। तो मुझे पता ही है कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट ये हो गया, देखो आयटा का साइन चेंज कर दिया, बाकी राइट हैंड साइड तो ऐसे ही रहा। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे हमने रियल पार्ट कंपेयर किया तो x² + y बराबर क्या मिला, -3, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते तो -x² y बराबर क्या मिलता, 4, सही है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा -4/x²। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो x² - 4/x² = -3, ठीक है ना। फिर से ये क्वाड्रेटिक, मतलब अभी तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें आप लोग x² को t मान के उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा, x⁴t² हो जाएगा और राइट हैंड साइड में -3t, तो इधर आके +3t और -4 बराबर हो गया 0, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइज भी हो गया, t + 4 × t - 1, सो t का दो वैल्यू है 1 और -4। -4 हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि t जो है वो किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, वो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो t बराबर जब 1 लेंगे यानी कि x² = 1, तो x बराबर 1 आ जाएगा या फिर x बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए y निकल के आ जाएगा, x बराबर 1 के लिए y क्या बनेगा, -4, और x बराबर -1 के लिए भी y बराबर -4, ठीक है। तो x और y बताना था, ये दो सोल्यूशन मिल गए अपने को, ठीक है। सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सॉरी ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया और ये हमारा दूसरा सोल्यूशन हो गया, ठीक। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + आयटा y टू द पावर 5 = p + आयटा q, ये गिवन है, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक। अब जो गिवन है वहीं से हिंट लेंगे, जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए। तो जो प्रूफ करना है उसमें एक तो मुझे x के साथ आयटा दिख रहा है, y के साथ आयटा नहीं दिख रहा है, ठीक। तो y के साथ आयटा कब नहीं दिखेगा, जब या तो मैं आयटा को उधर से कॉमन निकाल लूँ, आयटा को क्या कर लिया जाए, कॉमन निकाल लिया जाए बाहर, ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। x + आयटा y का पावर 5 है p + आयटा q के। मुझे y को आयटा से फ्री करना है, तो आयटा ब्रैकेट से कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वो क्या आएगा, 5, क्योंकि पावर 5 है। तो x/ आयटा रह जाएगा और +y पावर 5 = p + आयटा q, ठीक।
अब आयटा 5 सबको पता है क्या होता है, वो आयटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आयटा रह गया। अब आयटा के साथ x अपॉन आयटा, 1 अपॉन आयटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा आयटा से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो आयटा अपॉन -1 दैट इज माइनस आयटा, ठीक है। तो ये माइनस आयटा x प्लस वाई पावर 5 इक्वल टू p प्लस आयटा क्यू बन गया, ठीक। अब इधर राइट हैंड साइड में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आयटा तो चाहिए नहीं, तो इस वाले आयटा को ट्रांसफ़र कर दो किधर, इधर। तो y माइनस आयटा x का पावर 5 इक्वल टू p प्लस आयटा q अपॉन आयटा आ गया, सही है। फिर अगेन 1 बाई आयटा हमने अभी भी देखा, 1 बाई आयटा इज माइनस आयटा, तो इसको मैं p प्लस आयटा q इंटू माइनस आयटा लिख सकता हूँ। तो अभी क्या बन गया, y माइनस आयटा x पावर 5 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस आयटा स्क्वायर q इज q माइनस आयटा p, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था, ये है, ठीक है। देखते ही समझ आ जाएगा क्या करना चाहिए। आयटा जो हमें प्रूफ करना है वो हर जगह आयटा प्लस में, हमारे यहाँ माइनस में है, तो बस हमने कॉन्जुगेट कंसिडर कर लेना है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे, तो कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पर y माइनस आयटा x के पावर 5 का कॉन्जुगेट बराबर q माइनस आयटा p का कॉन्जुगेट, ठीक है। हमने ये देखा था कि कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पावर 5 का क्या मतलब है कि 5 बार मल्टीप्लाई में है सब कुछ, तो सबका अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इधर अपने को लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस आयटा x का पावर 5 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में q प्लस आयटा p, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने ऐसे ही ले लिया इसको, है ना। a प्लस आयटा b के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को कई बार एक दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये a प्लस बी का जो फॉर्म है इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहा जाता है, ठीक। कैसे करेंगे, तो ये तो समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में है, तो वो जो डिनोमिनेटर में है बस उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये डिवीजन में हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 6 आयटा माइनस 2 आयटा माइनस माइनस प्लस, बट आयटा स्क्वायर विल बी -4 डिवाइडेड बाई this is 1 plus 4, okay. So 3 minus 4 is -1 minus 8 आयटा डिवाइडेड बाई 5 को इंडिविजुअली अगर डिवाइड कर दें तो -1/5 एंड माइनस आयटा टाइम्स 8/5। तो ये बन गया a प्लस आई बी का फॉर्म, है ना। a का वैल्यू कितना है कंपेयर करेंगे तो -1/5 आ जाएगा और b का वैल्यू -8/5 आ जाएगा।